parenting is the easiest as well as the most complicated term in itself. Giving birth to a child is the rebirth of a woman, and being parent is the rebirth of both male and female, man and woman. So I think parenting, and I think all of you also agree with me that parenting is the most important role or duty a man or woman perform in his span of life. So before starting this experiential journey, let's try to stop the traffic of thoughts from your mind and try to check yourself that is the Wi-Fi of my thoughts have been connected with my heart. Friends, as all of us know that parenting is a boon in itself. So before starting this workshop, let's join hands together to thank God for our children. I know they are a gift from you. Every day, I need your strength and wisdom to train them in the way they should go. Give me patience. Thanks for the honor of being a parent. Before moving ahead, I would like to know your opinion. Please write in the chat box. What is parenting in your opinion? You all are requested to write in the chat box. What do you mean by parenting? Yes. What do you mean by parenting? Yeah, you will definitely get recording also. What do you mean by parenting? Yeah, you can write in the chat box. Yeah, parenting is raising an eco-friendly human being. It's understanding kids' opinion and let them understand. Very nice. And living my own child version in different way. Very good answer. So now, friends, uh, I would like to say that parenting is not only child rearing. It is much more than to provide parental services only. जनरली हम लोगों को लगता है और हमारी क्लिनिक पर भी ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमने अपने बच्चों को सब कुछ तो किया जो हमें करना चाहिए था, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, उनको समय पे खाना दिया, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं. सो हियर आई वुड लाइक टू से कि सिर्फ खाना पीना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी फिजिकल जैसे खाने पीने की आवश्यकताओं को पूरा करना, दिस इज नॉट ओनली पेरेंटिंग. पेरेंटिंग इज मच मोर देन to provide parental services only. Actually, as a parent, a parent performs the duty of Brahma, Vishnu, and Mahesh. It is very important to understand here. During parenting, a parent performs the duty of Brahma, Vishnu, and Mahesh. जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी ब्रह्मा का रोल है सृष्टि की उत्पत्ति करना, विष्णु का रोल है भरण पोषण करना और महेश का रोल है संहार करना. तो एज अ पेरेंट हम वही रोल, तीनों रोल हमको प्ले करने होते हैं. एज ए ब्रह्मा बच्चे की उत्पत्ति, एज ए विष्णु उसका भरण पोषण, और एज ए महेश एक ऐसा रोल है जहां पर हम अननोइंगली बहुत कुछ मिस कर जाते हैं. महेश का रोल एज ए महेश, यहाँ हमारा रोल एज ए पेरेंट सिर्फ उसकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर करना नहीं है. महेश का रोल है संहार करना, टू रिमूव ऑल द इल्यूजन्स फ्रॉम द माइंड ऑफ आवर चाइल्ड. हमारे बच्चे के दिमाग में जितने भी इल्यूजन्स हैं,
जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, बच्चे को जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन सबको रिमूव करना, उन सबका संहार करना, त्रुटि का शोधन करना. This is the role of Mahesh. So as a parent, we perform the duty of Brahma, Vishnu and Mahesh. So we can say that we should nourish each flower with its own speciality. It may be lotus, rose or marigold. जिस तरह लोटस की अपनी अलग क्वालिटी होती है, रोज के अपने अलग फीचर्स होते हैं और मैरीगोल्ड की एक अपनी अलग खूबसूरती होती है, उसी तरह हर बच्चा एक अलग काबिलियत लेकर पैदा होता है. हम अक्सर बच्चों को इस तरह के रिमार्क पास कर देते हैं कि देखो इतनी एज में उस बच्चे ने ये इतना अचीव कर लिया, वो बच्चा इतना कुछ अचीव कर रहा है. तो आई वुड लाइक टू से हियर कि हर बच्चा लोटस नहीं हो सकता, हर फ्लावर रोज नहीं हो सकता, या हर फ्लावर मैरीगोल्ड नहीं हो सकता. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई हैव. मेरा बच्चा लोटस है, रोज है या मैरीगोल्ड है, rather than comparing your child with other children. So I would like to say that a fully blown flower is one which has all the petals open. जिस तरह एक कार के 4 wheels होते हैं, a car has 4 wheels, and if you want to drive this car smoothly, wheel balancing is very important. अगर आपके कार के एक व्हील में, माय क्वेश्चन इज दिस, अगर आपके कार के एक व्हील में हवा नहीं है, बाकी के 3 व्हील में बहुत अच्छी हवा है, कैन यू ड्राइव द कार स्मूथली? प्लीज राइट yes or no in the chat box. My question is, if you are going to drive a car और आपकी कार के एक पहिए में, एक व्हील में हवा नहीं है और बाकी के 3 व्हील में हवा बहुत अच्छी है, कैन यू ड्राइव दिस कार स्मूथली? Yeah, I am getting your answers. Rachna Gupta, no. Anu Gupta, no. Preeti, no. Very good. Very good. Absolutely right. So if the wheel balancing is not proper, अगर चारों wheel में हवा ठीक से नहीं है, तो we can never drive this car smoothly. In the same way, in the Indian scenario, especially as a parent, जो traditional चला आ रहा है, we emphasize only on the academic wheel. Child is like a car. He has 4 or 5 wheels. 5 wheels like psychological, cognitive, physical, emotion, social, different wheels. We generally emphasize only upon cognitive. That we can say कि हम generally Indian scenario में हम उसके academic पर focus करते हैं. और if my child is good in others, but he is unable to score 90 or 90 above, तो कई बार ना चाहते हुए भी हम उसको कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन कर देते हैं कि देखो उस बच्चे के 90% आए, वो भी तो तुम्हारी तरह ही है, हमने तो तुम्हारे लिए कोचिंग भी लगा रखा है, ट्यूशन भी लगा रखा है, फिर भी तुम इस लायक नहीं हो, पीछे रह जाओगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी केस स्टडी भी यहाँ पर बोलना चाहूंगी. ये बिल्कुल रियल केस स्टडी है. मेरे पास एक 10 साल का बच्चा आया, उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मैम इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता. जिस समय इसको मैम पढ़ाती हैं, मैम पूरा चैप्टर पढ़ा देती हैं, उसके बाद इससे पूछा जाए कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ाया, तो इसको कुछ नहीं पता होता. इसका दिमाग सारे दिन शायद मोबाइल में, लैपटॉप में, गेम्स में, यूट्यूब में लगा रहता है या फ्रेंड्स के खेलने के बारे में सोचता रहता है. और जब उसकी टीचर से बात की तो टीचर ने भी बताया कि हाँ, इसका आजकल तो बच्चों का है ही दिमाग की स्टीरियोटाइप थिंकिंग की, शायद मोबाइल में लगा रहता होगा, गेम्स में लगा रहता होगा घर पे, तो इसीलिए क्लास में पढ़ाया हुआ कुछ समझ नहीं आता. टीचर ने अनइंटेंशनली बच्चों को बोल दिया कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. जब उस बच्चों को मेरे पास लाया गया तो हमने उस बच्चे से रैपो एस्टेब्लिश किया और उस बच्चे से पूछा कि एक्चुअल कॉज को जानने की कोशिश की कि क्या है. देन द चाइल्ड टोल्ड मी कि मैम मेरे पापा ने, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यूरिंग दैट पैंडेमिक, माय फादर डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड. My father decided to commit suicide because there was a fight happened between my mother and my father. और मेरी मम्मी ने पापा को बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते. तो पापा को लगा I am a failure and that's why he went to commit suicide. जैसे तैसे हम उनको घर लाए. तो मैम जब भी मैं स्कूल होता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा सुसाइड कर लें. लेकिन अगर मेरी मैम ने बोला है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे भी सुसाइड कर
लेनी चाहिए क्योंकि मैं भी एक फेलियर हूँ और लूजर को तो सुसाइड ही एक ऑप्शन होता है। तब उनकी फैमिली काउंसलिंग की गई और तब समझाया गया कि दिस इज नॉट द ऑप्शन। इस तरह से अगर बच्चे एकेडमिक में कम कर रहे हैं तो रादर देन टैगिंग देम, ओ अच्छा तुम्हें तो सारा दिन मोबाइल की लत है या तुम्हारे दिमाग में तो हर समय यूट्यूब घूमता होगा, पबजी घूमता होगा, रादर देन टैगिंग योर चाइल्ड विद दिस कमेंट्स, इट इज ऑलवेज बेटर टू नो द रीजन, टू नो द अल्टीमेट कॉज, किसका कारण क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते ना ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। तो अपने बच्चों की उस प्रॉब्लम को जानना, तो जिस तरीके से कार के चारों व्हील्स में हवा प्रॉपर होनी चाहिए, उसी तरह एकेडमिक इज जस्ट ए पार्ट। और बाय मिस्टेक एज अ पेरेंट हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, अगर एकेडमिक वाले व्हील में हवा प्रॉपर नहीं है तो हम उस कार को खराब समझ लेते हैं। जबकि अगर हम अदर्स व्हील में, खासकर इमोशनल व्हील, सोशल, साइकोलॉजिकल, इनमें अगर अच्छे से हवा का ध्यान रखें, इनमें अगर बच्चों को हम स्ट्रांग बनाएं, तो जो उनका एकेडमिक है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। तो इसीलिए ट्राई टू मेक योर चिल्ड्रन इमोशनली स्टेबल एंड स्ट्रांग, बिकॉज इमोशनली स्ट्रांग, if your child is emotionally strong, then they can do their best in all the fields. For example, if you are a very good chef, अगर आप एक बहुत अच्छे कुक हैं लेकिन इमोशनली आज आपके अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई है या इन लॉज से लड़ाई हुई है, तो गारंटी नहीं है कि आप जो खाना बनाएंगे वो बहुत अच्छा बने, क्योंकि बिकॉज यू आर इमोशनली डिस्टर्ब, तो देयर आर 100% चांसेस कि कोई कमी छूट जाए। इफ यू आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी, देन डेफिनेटली कि आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो वो खाना बहुत अच्छा बनेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, और अपने बच्चों की इमोशनल वेलबींग पर ध्यान देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ we come to know about smart parenting and what is the need of smart parenting. आज के टाइम में स्मार्ट पेरेंटिंग की नीड क्या है, स्मार्ट पेरेंटिंग किसे कहते हैं? As we discussed that as a parent, we perform the role of Brahma, Vishnu and Mahesha. Now it is very important to make this time successful and fruitful to understand what do we mean by smart parenting. I would like to request you to write in the chat box what do you mean by smart parenting and why it is important. What is the need of smart parenting? What do we mean by smart parenting? Yes. What do we mean by smart parenting? Better way to understand our children. Very good, Preeti. Smart parenting is a better way to understand your children. Balanced life. Very good, Deepti. Yes. So now we see what do we mean by smart parenting, and it is very important to understand what do we mean by smart parenting. First of all, S. S stands for specific. Specific means हर एज स्पेसिफिक पर जब आपके बच्चे को आपकी जरूरत हो, then you should be there according the with the child level logic. हर एज की अपनी अलग स्पेसिफिक नीड होती है। हर एज की जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम बच्चों की हर स्टेज पे एक ही तरह की पेरेंटिंग करते हैं, दैट इज जनरली कॉल्ड वर्बल पेरेंटिंग, तो और डायरेक्ट पेरेंटिंग वी कैन से। यहाँ हमें क्या ध्यान देना है कि हमें बच्चों की परवरिश करने में एक स्पेसिफिक एज का ध्यान रखना चाहिए कि कब हमें बच्चों की वर्बल पेरेंटिंग करनी है, कब नॉन वर्बल पेरेंटिंग करनी है। नॉन वर्बल उनके सामने एक रोल मॉडल की तरह पेश होना है। कब हमें अपने बच्चों की डायरेक्ट पेरेंटिंग करनी है, कब हमें अपने बच्चों की इनडायरेक्ट पेरेंटिंग करनी है। तो एज के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से आवर पेरेंटिंग स्टाइल शुड बी वेरी स्पेसिफिक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स जिस तरीके से इफ आई लव वेरी स्पाइसी फूड, मेरे को बहुत चटपटा खाना पसंद है, लेकिन अगर मैं एक ही सब्जी में
सारी मिर्च डाल दूंगी तो क्या होगा, वो पूरी सब्जी स्पॉइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। इसी तरह हमें कब कितने इमोशंस को मेजर करके कितना इमोशंस अपनी पेरेंटिंग में डालना है। इमोशंस आर जस्ट लाइक स्पाइसेस। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को ओवर सारे इमोशंस, इतने ज्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों की हर डिमांड्स को पूरी कर देते हैं बिना सोचे समझे कि ये उनके लिए आगे सही है या गलत है। लेकिन उससे क्या होता है, आगे वो रेसिपी हमारी खराब हो जाती है। चाइल्ड इज जस्ट लाइक ए स्प्राउट, आगे वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों की परवरिश में हमको हमेशा एक मेजरमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि कब हमको विष्णु का रोल अदा करना है, कब महेश का, और कब हमें उसकी मदर बनना है और कब हमें उसका टीचर बनना है। तो कहाँ पर कितने इमोशंस बच्चों को दिखाने हैं, कहाँ पर हमें ब्लंट हो जाना है, कहाँ पर उसकी बातों को अपनी पूरे दिल से सुनना है, किन बातों पर उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है। तो पेरेंटिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रेशियो एंड मेजरमेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे पास एक क्लाइंट्स आए, उन्होंने बताया कि मैम मैंने घर में कैमरा भी लगवा रखा है, एज वी बोथ आर वर्किंग, तो मैंने कैमरा भी लगवा रखा है और मैं अपने ऑफिस से बच्चे पर नजर रखती हूँ। उसके बाद भी वो पता नहीं कहाँ से गड़बड़ कर देता है, वो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है और उसने पता नहीं कहाँ से पॉर्न वीडियोस वगैरह इन सब की भी उसको आदत पड़ गई है। सो हियर आई वुड लाइक टू से you should be available whenever your child needs you. As I can understand that in the modern era, generally both the parents are working, so it is very difficult to be physically available all the time. आज के टाइम में जैसे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं काफी, तो ये बहुत नामुमकिन है और बहुत मुश्किल है कि हम अपने बच्चे के सामने हर समय अवेलेबल हों, क्योंकि हमारे पास इतने सारे बहुत सारे काम होते हैं, तो हर समय अवेलेबल होना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन here available means not physically available. Available means available psychologically and emotionally. कहते हैं ना कि चांद तारे ना ये रंगोबू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं उसको तू चाहिए। आप अगर वर्किंग हैं और आपको लगता है कि आई एम अनेबल टू गिव सो मच टाइम टू माय चाइल्ड, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू शुड फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, कि हम क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ध्यान दें कि अपने बच्चों के साथ कितना समय हमने स्पेंड किया। इट डजंट मैटर, इट हार्डली मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर मैं अपने बच्चों के साथ आज दिन में 10 मिनट्स भी ऐसे रही जहां पर मैंने अपने बच्चों के अंदर एक नई वैल्यू को इनकलकेट किया, ऐसे वैल्यू के मैंने उनके दिमाग में डाला कि अगर मैं कल यहाँ नहीं भी हूं तो मेरे बच्चे किस डायरेक्शन में सोचें। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हमने अपने बच्चों को पहले से बता दिया कि बेटा नाउ यू आर एट दिस स्टेज, जहां पर अब आप 13 एज में एंट्री कर रहे हो, नाउ यू आर 13-14, अब आप देखोगे कि सब एग्जीबिशनल बिहेवियर कर रहे हैं। तो एग्जीबिशनल बिहेवियर आपको पहले से हम बच्चों को बता दें क्या होता है, जो मैं अभी आगे डिस्क्राइब भी करूंगी। तो अगर हम आगे आने वाली सिचुएशंस के बारे में अपने बच्चों के साथ 10 मिनट निकालकर उनके साथ एक हेल्दी डिस्कशन करें, क्वालिटी टाइम बिताएं, जहां पर सिर्फ हम बच्चों के लिए उनके दिमाग में कुछ इंसर्ट करें जो एवर लास्टिंग हो, हमेशा उनके दिमाग में रहे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन स्पेंडिंग आवर्स विद देम। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेलिवेंट। बहुत से पेरेंट्स बच्चों की हर बात को ओके ठीक है मान लेते हैं, चलो अभी तो फिलहाल ये चुप हो जाएगा, अभी तो फिलहाल ये मान लेगा, बट दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। अगर आपका बच्चा किसी चीज की डिमांड कर रहा है तो हमें उसको ये नहीं सोचना है कि अभी इमीडिएटली उसको कैसे चुप करना है, उसको फिलहाल कोई सामान दे दो, या अगर वो मोबाइल की जिद करे फिलहाल मोबाइल दे दो। राइट नाउ हमें उसको कैसे भी करके चुप करना है। दिस शुड नॉट बी आवर स्ट्रेटेजी। आवर स्ट्रेटेजी शुड बी कि किस तरीके से उसको चुप ना करके उसको जस्टिफाई करने हैं कि पर्टिकुलर डिमांड इज राइट और रॉन्ग। इफ राइट देन वाई राइट, इफ रॉन्ग देन वाई रॉन्ग। और उस चीज को उसके ऊपर थोपना नहीं है, उसको ये चीज समझानी है कि आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। बच्चा खुद से उस चीज को अंडरस्टैंड करे और एक्सेप्ट करे, उसको उस लेवल तक लेकर आना है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करे
कि हाँ, इफ माय पेरेंट्स आर सेइंग दिस इज रॉन्ग, देन एक्चुअली दिस मे बी रॉन्ग। क्योंकि हम कई बार छोटे होते हैं, एक ऐसा होता है कि जैसे बच्चों को ये चीज समझानी चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि कभी कभी तो पेरेंट्स, हमारे पास कई बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स कभी तो कहते हैं, टीनेजर्स की प्रॉब्लम, कि मैम कभी तो पेरेंट्स कहते हैं कि ना अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने काम खुद किया करो। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ करते हैं तो पेरेंट्स की शिकायत होती है कि इतने बड़े नहीं हुए हो, छोटे ही रहो, ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। तो मैम हमें बताओ कि हम छोटे हैं या बड़े हैं? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट वेरी क्लियर, अपने बच्चों के सामने ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि बेटा पहले आप क्या थे, यू वर लाइक ग्रास, पहले आप घास की तरह थे, नाउ यू आर लाइक बुशेस, अब आप बुशेस की तरह हो, जैसी झाड़ियां होती हैं, एंड वी आर लाइक ट्री, तो आप अभी ट्री नहीं बने हो, लेकिन अब आप ग्रास भी नहीं रहे हो, अब आप बुशेस की तरह हो गए हो, नीचे से थोड़े से बड़े हो गए हो, लेकिन अभी ट्री नहीं बने हो। तो आप इस स्टेज पे हैं कि अगर आप देखेंगे तो आप औरत से बड़े हुए हो, सो यू शुड बिहेव अकॉर्डिंगली, लेकिन अभी उतने बड़े नहीं हुए हो, तो आपको उस लेवल का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइमली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहते हैं ना कि अगर किसी को कोविड हो गया, अगर हमने कोविड होने के बाद उसको समझाएं कि यू शुड हैव योर मास्क, यू शुड यूज सैनिटाइजर, दिस इज एन एज ऑफ पैंडेमिक, तो उसका कोई यूसेज नहीं है। जब कोविड हो गया तो उसके बाद समझाया तो क्या समझाया। इसी तरह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे अपनी लाइफ के हर स्टेज में जिस सिचुएशन को क्रॉस करने वाले हैं, उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में अगर हम जिस तरीके से पहले से बच्चों को बताया जाता है कि अभी पैंडेमिक है, आप बाहर निकले तो डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लें, सैनिटाइजर लें, इसी तरीके से लाइफ की हर सिचुएशन के बारे में बच्चे को पहले से ही अगर हम उसका एक माइंड स्पा कर दें, पहले से उसके थॉट्स को हम एक सैनिटाइज कर दें टाइमली, कि इस तरह की सिचुएशन सब बाहर आएंगी, तो आपको इस तरीके की थॉट प्रोसेस अपनी रखनी है, हाउ टू फेस दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। क्योंकि बाहर के टाइम में इट इज रियली अ पैंडेमिक इरा, पैंडेमिक नॉट ओनली कोरोना वायरस, पैंडेमिक सोशल मीडिया, वर्चुअल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड सो स्पॉटिफाई सो एंड सो। तो बच्चों को दिखाना है कि बाहर बहुत सारे वायरस हैं और इस वायरस से आपको पहले से ही किस तरीके से प्रिकॉशन रखना है कि ये वायरस आपको ना लगे। So it is very important to save your child from this carnival of destruction in advance. Now, to understand this, कि how we can save our child from this carnival of destruction, it is very important to make a checklist time to time. हमें अपने दिमाग में एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए, जो मैंने आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर शेयर की है। आई एम गिविंग यू 5 minutes. टाइम टू टाइम हमें अपने दिमाग में एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। Here you can see there are two parts, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और अपने दिमाग में टाइम टू टाइम, क्योंकि जितना अच्छा एक पेरेंट्स अपने बच्चे को जज कर सकता है उतना और कोई नहीं कर सकता, हम टाइम टू टाइम ये देखें कि मेरे बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है या नेगेटिव। आप सब स्क्रीन पर मैं आपको 5 minutes यहाँ पर आई एम गिविंग यू 5 minutes, आप इस चीज को देखिए कि मेरे बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है या नेगेटिव, हम इसको पढ़ेंगे। और अगर हमारे बच्चे के अंदर इफ माय चाइल्ड इज हैविंग एनी 3 negative points, then it is an alarming situation. This is a reminder that it is time to work hard to make strategy. It is if we see that any 3 points can be seen in my child's behavior, then it is an alarming situation. अगर इनमें से एक चेकलिस्ट में से नेगेटिव के कोई भी 3 सिम्टम्स हमें अपने बच्चे में लगते हैं, तो इसका मतलब कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां हमें अपनी पेरेंटिंग को रिफ्रेश करने की, थोड़ा और स्मार्टली रिफ्रेम करने की जरूरत है। नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड. You can take a screenshot if you want. Yeah.
हर एज की अपने अलग अलग स्टेजेस होती हैं. सो childhood has different two stages. It can be divided into two parts, prenatal and postnatal. If we talk about prenatal, generally हम लोग childhood शुरू करते हैं बच्चों का 0 to 1 year से, पहले दिन से, जब से बच्चा जन्म लेता है. लेकिन अगर हम देखें तो prenatal stage is very important. जन्म से पहले की जो अवस्था है, गर्भावस्था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर हम इंडियन मैथोलॉजी को भी देखें तो अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह में जाने का रास्ता अपने माँ के पेट में ही सीखा था. लेकिन जब उनकी मदर उनको बाहर आने का रास्ता बता रही थी, उस टाइम पे वो सो गए थे. दैट्स वाई कि महाभारत में जब युद्ध हुआ तो उनको चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो पता था, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं पता था. सो इट इज वेरी फाउंडेशन स्टेज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डिसाइड टू बी अ पेरेंट. जब आप मेंटली ये चीजें डिसाइड करते हो कि हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू बी अ पेरेंट, वी हैव डिसाइडेड, उस दिन से आपकी पेरेंटिंग शुरू हो जाती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योरसेल्फ अकॉर्डिंगली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू कंसीव अ बेबी. And the next important stage is postnatal stage. Then can be divided into 6 parts: infancy, toddler, play age, elementary school, pre-adolescence age and adolescence age. By infancy 0 to 1 year हम यहाँ पर जल्दी जल्दी हर स्टेज की प्रॉब्लम्स को बताएंगे, जो जनरली हम अनइंटेंशनली अननोइंगली जो प्रॉब्लम्स, जो मिस्टेक्स करते हैं अपने पेरेंटिंग में. अगर हम इन्फेंसी स्टेज को देखें तो दैट इज फ्रॉम 0 to 1 year. 0 to 1 year बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है. यहाँ पर हम अपने बच्चों को कहते हैं अभी तो छोटा है, अभी क्या सीखेगा, लेकिन बच्चे की लर्निंग तो प्रीनेटल स्टेज से शुरू हो जाती है. इन्फेंसी स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज टू लर्न. यहाँ पर जब हमारा बच्चा बहुत छोटा क्रोलिंग करता है, उससे भी पहले हम लोग जनरली क्या करते हैं कि बच्चे के सामने हमने मोबाइल दे दिया बच्चे को, उसके सामने टीवी लगा दिया. हम बच्चे के माइंड में साइकोलॉजिकली एक एनकोडिंग करते हैं कि स्क्रीन इज बेटर ऑप्शन देन मदर. Screen is better option than mother. You will be appreciated if you get yourself engaged with this screen rather than crying for your mother. हम अपने बच्चों को ये चीज सिखा देते हैं कि मम्मी के लिए रोते रहो, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप स्क्रीन को देखो. और हम कई बार खुश भी होते हैं कि देखो मैंने सारा काम निपटा लिया, मेरा बच्चा टीवी में या मोबाइल में इतना ज्यादा एनग्रोज हो गया, छोटा सा बच्चा भी. बट दिस इज अटर रॉन्ग. हम अपने बच्चों को यहाँ कहीं ना कहीं एक एडिक्शन डाल रहे हैं. यहाँ यही एक स्टेज है जहां हमने अपने बच्चों को एक एडिक्शन डाल दिया. और जब वो एडिक्शन बढ़ जाता है, जब 0 to 13 ईयर, जब बच्चे का बिहेवियर पैटर्न फिक्स होने की एज होती है, जब वो बिहेवियर पैटर्न फिक्स कर लेता है, जो उसको हमने इन्फेंसी स्टेज में सिखाया कि दिस स्क्रीन इज बेटर ऑप्शन देन मदर एंड यू यूज्ड टू गेट एप्रिसिएशन. तो फिर हम बाद में प्रॉब्लम में आते हैं कि इस बच्चे को किसने ये आदत लगा दी स्क्रीन की, कहाँ से इसको स्क्रीन की आदत पड़ गई, ये तो हमारे साथ बात ही नहीं करना चाहते. नेक्स्ट पॉइंट इज टोडलर स्टेज. टोडलर स्टेज जब हमारा बच्चा 1 to 2 ईयर का, 1 ईयर के आसपास का होता है. यहाँ पर जनरल प्रॉब्लम्स, हम जनरल मिस्टेक एज अ पेरेंट क्या करते हैं. मान लीजिए आपके बच्चे ने 3-4 कदम रखे, उसके बाद बच्चा गिर गया और वो आपको हाथ से ऐसे कर रहा है कि मुझे ले लो. तो rather than going and hugging him, it is important कि हम अपने बच्चे को ये बिलीफ दिलाएं कि हम हैं आपके साथ. लेकिन rather than going and hugging and cuddling your child, it is important कि हम उसको दूर से मोटिवेट करें कि हाँ इधर आओ, yes you should get up and come here. यहाँ से हम अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि किस तरीके से आपको हर समय हेल्प मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको खुद से गिरकर खुद से उठना है. इस धरती पर जन्म लिया तो अपना फर्ज निभाना तुम, गिरो तो उठना, उठकर चलना, कभी नहीं घबराना तुम. नेक्स्ट स्टेज इज प्ले एज. जब हमारा बच्चा करीब 2-3 साल का होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनरल मिस्टेक जो एज एन एजुकेशनल पर्सन, एज एन एजुकेशनिस्ट भी मैंने देखी है. हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जब मॉल जाता है तो कई बार वो मॉल में बुरी तरीके से फैल जाता है एंड ही जनरली डज वेरी क्रैंकी बिहेवियर कि मुझे तो टॉय चाहिए वरना मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं.
मुझे ये आइसक्रीम चाहिए वरना मैं आज यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। एंड इन दिस सिचुएशन पेरेंट्स फील वेरी ऑकवर्ड और उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता बच्चों को दिलाने के अलावा। लेकिन वही बच्चा जब अपनी प्ले क्लास में जाता है, प्ले वे में जाता है, कभी भी कोई बच्चा अपनी टीचर से कभी जिद नहीं करता कि अगर आप मुझे मोबाइल नहीं दोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर आप मोबाइल पे गाने नहीं चलाओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, या मैं इस टॉय को लेकर ही घर जाऊंगा। कभी कोई बच्चा जिद नहीं करता क्योंकि बच्चों को पता होता है कि मैम हमको नहीं देंगी। So but the child can calculate this thing and he can understand this thing, he can manipulate this thing. So it is very important कि हम अपने बच्चों के साथ नेगोशिएटिव बिहेवियर कहाँ तक करें, किस हद तक करें। फिर हम कहते हैं कि बच्चे जिद्दी बन गए। नेक्स्ट एलिमेंट्री स्कूल एज। एलिमेंट्री स्कूल एज जब हमारा बच्चा 5th क्लास तक होता है। यहाँ पर बच्चों की जनरल प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं कि बच्चे घर में आकर कंप्लेन करते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास तो ना इतना बढ़िया गैजेट है, इतना अच्छा पेंसिल बॉक्स है, आपने मुझे इतना ऐसा नहीं दिलाया, मुझे तो वैसा ही पेंसिल बॉक्स लेना है, मुझे तो बेंटन वाला बैग ही लेना है। तो जनरली पेरेंट्स कहते हैं कि मैम ये बहुत जिद करता है, अब इसको क्या करें, कैसे समझाएं हम कि इसको हर चीज में लगी रहती है कि मेरे को भी ये लेना है, जबकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर हमें अपने बच्चों को पहले से ही ये चीज समझाकर रखनी है कि बाहर आपको वायरस की तरह बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब आप अपने घर से बाहर स्कूल के लिए निकलेंगे, मे बी कि किसी दिन किसी बच्चे का बैग आपसे अच्छा हो, मे बी कि किसी दिन किसी बच्चे का पेंसिल बॉक्स आपसे अच्छा हो, कोई बच्चा फूड बहुत अच्छा लाया हो, मे बी कि बर्थडे पार्टी कोई बच्चा मैकडोनाल्ड में करे या 5 स्टार होटल में करे। पर आपको ये चीज क्लियर अपने बच्चों को कन्विंस करके समझानी है कि हमको हमारी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं, रादर देन कॉपिंग अदर्स। अगर हम अपने बच्चे को पहले से ये सारी चीजें बाय यूजिंग चाइल्ड लेवल लॉजिक दिमाग में क्लियर कर देते हैं तो आपका बच्चा किसी भी सिचुएशन में पहले से ही आंसर्ड होगा और वो इन चीजों की तरफ भटकेगा नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज प्री एडोलेसेंस स्टेज। प्री एडोलेसेंस स्टेज that comes from 8 to 13 years. 30 teenage, we can say teenage. So in teenage generally problems यहाँ पर बहुत सारी होती है because it's a transformational stage. इस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज में क्या होता है कि अभी तक जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसका लंच बॉक्स मेरे से अच्छा है, यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम्स फिर से चेंज हो जाती हैं। और अब बच्चों की प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं? नाउ दे स्टार्ट डूइंग एग्जीबिशनल बिहेवियर। एग्जीबिशनल बिहेवियर, they try to show themselves as a thing of exhibition. अपने आप को शो ऑफ करना दूसरे के सामने, बार बार बालों में हाथ या अपने आप को एग्जिबिट करके सेल्फी पाउट बनाना। they just try to crop and edit themselves to get maximum like by the peer group and by the society, by the social group. So it is very important to make your child safe from this carnival of distraction in advance. अगर हम अपने बच्चों को पहले से बता देंगे, एलिमेंट्री स्कूल एज क्रॉस करते करते ही बता देंगे कि बेटा नाउ यू आर गोइंग टू दिस इज योर माइग्रेशन स्टेज। अब आप एक पॉन्ड से ओशन में जा रहे हो जहां पर आपको इस तरह की फीलिंग्स और इमोशंस मिलेंगे, इस तरह की चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है कि लोग कुछ भी करें, मुझे तारों की तरह नहीं बनना, मुझे चांद बनना है। और लाइफ के 4 यूटी होते हैं। पहला यूटी जहां मुझे सिर्फ पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को पाना है। दूसरा यूटी जहां मेरी जॉब, मैरिज, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। थर्ड यूटी 50 to 75 स्टेज जहां पर आपके दादा दादू वाली स्टेज है। एंड नेक्स्ट यूटी जब हमारी बिल्कुल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वाली स्टेज होती है। तो अभी आपको अपनी एज के हिसाब से सिर्फ पढ़ने लिखने पर ध्यान लगाना है और ये आपका फर्स्ट ड्यूटी है लाइफ का। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज में जनरली जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम, ये पीरियडोलेसेंस में भी और एडोलेसेंस में भी आती है। आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड इमोशनल कैथारसिस वी कैन से। आइडेंटिटी फॉर्मेशन की सबके बीच में ना मेरी तो इमेज कुछ भी नहीं है, अपनी इमेज बनाना, अपनी इमेज बनाना। कुछ बच्चे वो इमेज बनाते हैं अपनी पढ़ाई के बूते पे, कुछ बच्चे वो इमेज बनाते हैं अपनी इंटेलिजेंस के बूते पे, लेकिन कुछ बच्चे एग्जीबिशनल बिहेवियर,
by cropping and editing themselves, और वो friends के साथ selfie और फिर से again all these things by distracting themselves. So it is very important कि अपने बच्चों को पहले से समझाया जाए कि हमको आग की तरह, सोने की तरह बनना है जो जितना तपता है लाइफ में. अगर आज मजा तो कल सजा, अगर आज सजा तो कल मजा. तो हमें आज अपने 25 ईयर तक के स्पैन को हम जितने इसमें मेहनत कर लेंगे, आगे हमको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना होकर अपना एक लक्ष्य बनाएं और उसी पर आगे मूव करें, क्योंकि 25 इयर्स तक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गोल को अचीव करें. हम उनको पहले से एक गोल दे दें, टारगेट ओरिएंटेड बना दें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जनरल चैलेंजेस विद द चिल्ड्रन इन द मॉडर्न इरा. आज के टाइम में हमारे बच्चों के सामने मेन चैलेंजेस क्या आते हैं? थिंकिंग बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. आजकल बच्चों की थिंकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है. अब सिर्फ वो ऑप्शन नहीं है जो पहले थे कि चलो लिमिटेड ऑप्शन है. नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. जिससे बच्चे हमारे पास आते भी हैं कि मैम मुझे पढ़ाई की जगह मैं सोच रहा हूँ यूट्यूबर बन जाऊं, मुझे लगता है कि मैं तो क्रिप्टो करेंसी से ही कमा लूंगा, पापा को तो अकल ही नहीं है. बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स. एंड फोकस अपॉन पर्सनल डिसीजन मेकिंग. बच्चों को लगता है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. begin to verbalize their own thoughts. सब बच्चे हमारी तरह नहीं है, पिछली जनरेशन की तरह नहीं है कि शांत लगा जाएं कि चलो बड़े जो कर रहे हैं ठीक है. they begin to verbalize their own thoughts. वो अपनी बातों को रखते हैं. और क्वेश्चनिंग बिहेवियर, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स और क्वेश्चन करना. अचीविंग क्वाइट मैच्योर रिलेशन विद एजमेंट्स ऑफ बोथ सेक्स. identity formation crisis, exhibitional behavior as I have discussed earlier. And they are achieving more independence. This is the very important problem. Now the children are achieving more independent. वो independent life जीना चाहते हैं. And they begin to demonstrate the use of logic. हर चीज में वो अपना logic बताते हैं. तो हमें अपने बच्चों को समझाना है कि हर चीज में खुद को जस्टिफाई करना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पक्ष भी रखें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक पैसिव लिसनर नहीं बनना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पक्ष भी रखिए, लेकिन उसे रखने का एक तरीका होना चाहिए. लैक ऑफ मोटिवेशन, स्ट्रेस, डाइवर्जन ऑफ माइंड, अगेन क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया, फिर और स्नैपचैट, सो मेनी थिंग्स, पीयर प्रेशर. दीज आर द जनरल चैलेंजेस विद द चिल्ड्रन इन द मॉडर्न इरा. नाउ जनरल चैलेंजेस ऑफ पेरेंटहुड इन द मॉडर्न इरा. एज अ पेरेंट हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? स्कार्सिटी ऑफ टाइम. जैसे कि दोनों पेरेंट्स आजकल वर्किंग हैं तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए इतना टाइम निकालना कि उनको होमवर्क भी कराओ, उनके मॉरल वैल्यूज पर भी ध्यान दो, उनके फ्रेंड्स को भी देखो कि फ्रेंड्स कैसे हैं. डिफिकल्टी इन इनकलकेटिंग मॉरल वैल्यूज. बच्चों में कैसे मॉरल वैल्यूज डेवलप करें? और जब उनके साथ कुछ बात करने बैठते हैं तो बच्चे हमसे बात ही नहीं करना चाहते. उनको तो लगता है बस जल्दी से अपने भाषण खत्म करो एंड मुझे फ्री करो. इमोशनल डिसोल्यूशन. पैंडेमिक में बहुत सारी फैमिलीज के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं. तो पेरेंट्स आर देमसेल्व्स इमोशनली डिस्टर्ब, so they are unable to spend so much time with their children or to understand them because they are under the custody of their own thoughts. Emotional disturbances. Lack of awareness. कई बार हमें पता नहीं होता कि हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ कमी आ रही है. So here I would like to say that as all the mobiles cannot be charged with the same charger, in the same way all the children cannot be treated by the same parenting method. नेगोशिएटिव पेरेंटिंग. कई बार हम बच्चों को चुप करने के लिए, अच्छा चलो मैं ऑफिस से आई हूँ अभी, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, लो मोबाइल ले लो, कितनी भी देर चला लो, बस मेरा पीछा छोड़ो. सोशल इन्फ्लुएंस. हमें कई बार लगता है कि समाज में आजकल सभी बच्चे कर रहे हैं मोबाइल, तो मैं कैसे मना करूं. पुअर रैपो एस्टेब्लिशमेंट. बच्चे और पेरेंट्स के बीच में रैपो एस्टेब्लिशमेंट अच्छा नहीं है. एंड फिनेंशियल, इमोशनल, पर्सनल स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें हैं. तो हम अगर देखें अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इंपॉर्टेंट टिप्स. ये तो हो गए प्रॉब्लम की बात. कहते हैं ना कि खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, इस उजड़े चमन में फेरबदल कौन करेगा, और प्रश्नों के चक्कर में पड़े रहे जो हम तो उत्तर की समस्या को हल कौन करेगा. सो देयर आर उत्तर ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स. इंपॉर्टेंट टिप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी द चेंज यू वांट टू सी. अगर आप अपने बच्चे को चाहते हो कि आपका बच्चा वैसा ही बने जैसा आप चाहते हो, तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले अपने माइंड में एक कॉलर आईडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जितना हमको सुनते हैं उससे ज्यादा हमें देखते हैं. जिस तरह अगर मेरे फोन में अभी एक कॉल आए और मैं उसको स्नूज कर दूं, बिकॉज दिस वर्कशॉप इज वेरी
important, this is my priority right now. In the same way, it is very important as a parent कि हम अपने दिमाग में कॉलर आईडी लगा के रखें, if these 10 minutes are only for my baby, my child. तो जो भी थॉट्स इस समय, जो भी कॉल मेरे माइंड में आ रही है, तो मैं उसको स्नूज कर दूं, बिकॉज दिस टाइम इज जस्ट फॉर माई चाइल्ड. सो इफ you are connected with your child with full heart, definitely he will do the same. Next important thing is children learn more from what you are than what you teach. Definitely आप बच्चे को जो सिखाते हैं उससे पहले हमारे पास बहुत से बच्चे आते कहते हैं मैम आप तो बॉडी लैंग्वेज में सिखाती हो किस तरीके से बोलना चाहिए, मेरे तो पापा खुद ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, खुद ही गालियां देते हैं. तो इसीलिए बच्चे हमें देखते ज्यादा हैं, देखकर ज्यादा सीखते rather than they hear us. Next is punishment can make them obedient but not confident. This is very important कि अगर हम अपने बच्चों को punishment देते हैं, punishment से हो सकता है बच्चे हमारी बात तो मान लें, लेकिन वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और उनके अंदर इमोशनल कैथारसिस की प्रॉब्लम, कुंठा जिससे बोलते हैं, वो आ जाती है, कहीं ना कहीं एक रिवेंज वाली फीलिंग आ जाती है. एंड डोंट फॉरगेट टू लिसन टू देम. कई बार एज अ वर्किंग पेरेंट्स हमारे पास टाइम नहीं होता कि बच्चे की इतनी सारी बातों को सुने. कई बार ऑफिस निकलना होता है, उसी समय पे बच्चा कहता है कि मम्मी आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है. तो उस समय पे ये कहने की जगह कि बेटा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में सुनूंगी, कहने का तरीका होना चाहिए कि अरे वाह ये वाली बात फ्रेंड्स की मैं तो जरूर सुनना चाहती हूँ, क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मुझे निकलना है तो मैं इतने ध्यान से नहीं सुन पाऊंगी जितना मैं सुनना चाहती हूँ. मैं ना एक काम करती हूँ, मैं दिन में ना तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ और मुझे तुम डिटेल में बताना, जब तक तुम ध्यान से सोच के रखना कि क्या क्या बात है, मैं भूल भी चाहूँ तो तुम मुझे रिमाइंडर दे देना. सो दिस इज द वे. नेक्स्ट, स्पेंड क्वालिटी टाइम rather than क्वांटिटी एंड बी ए यूनाइटेड फ्रंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मम्मी पापा दोनों को अपने बच्चों के सामने एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मम्मी ने बात नहीं मानी तो पापा ने मान ली, पापा ने बात नहीं मानी तो ठीक है मम्मी से काम निकलवा लिया. दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न. You should be, both the parents should be a united front in front of your child. Next is correct their behavior, not them. This is very important कि अगर जब भी आप अपने बच्चे से बात करें तो बच्चे के बिहेवियर को गलत बताएं, ना कि बच्चे को. हमें बच्चों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि देखो आप यहाँ भी गलत हो. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. देखिए आप बहुत अच्छे हो, मुझे पता है कि आप यू आर वेरी गुड चाइल्ड, लेकिन यहाँ आपसे ना जो आपने डिसीजन लिया ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम एक बार देखें कि कैसे गड़बड़ हो गया. तो ट्राई टू करेक्ट द बिहेवियर ऑफ योर चिल्ड्रन, नॉट टैग देम दैट यस यू आर रॉन्ग. अभी मेरे पास एक डॉक्टर फैमिली से ही कोई आया और उन्होंने बोला कि मैम देखिए मेरा बच्चा ना है ही बेवकूफ. सो दिस इज वेरी बैड टू टैग योर चाइल्ड लाइक दिस. एंड डू नॉट बी ऑलवेज रेडी टू आंसर बिफोर क्वेश्चंस. कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम मम्मी पापा से कुछ भी कहो ना, उनके पास हर चीज का पहले से जवाब होता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज चाइल्ड लेवल लॉजिक कि अपने बच्चों के साथ किसी भी क्वेश्चन से पहले उनके क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और तब ट्राई टू गिव देम सेटिस्फैक्टरी आंसर, नॉट जस्ट टू मेक देम क्वाइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसा भी कहते हैं कि मैम हमें तो मतलब ये हमारे सामने ना खुलता ही नहीं है कि इसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे को हाइपोथेटिकल कहानियां बनाएं कि अच्छा जैसे एक बच्चा बड़ा सैड था तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अरे एक हाइपोथेटिकल कहानी हमने बनाई कि अरे तुम सैड हो, मुझे पता है तुम क्यों सैड होंगे, क्योंकि जब मैं तुम्हारे जैसी थी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मुझे भी ना कोई समझ ही नहीं पाता था, ना मम्मी ना पापा, बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी. तो उस बच्चे ने मेरी तरफ देख के पूछा अच्छा मैम क्या आपके भी मम्मी पापा लड़ते रहते थे, क्या वो भी हमेशा आपको ही डांटते रहते थे, वो आपकी सुनते नहीं थे. इस तरह धीरे धीरे द चाइल्ड ट्राई टू ओपन हिमसेल्फ. तो आप बच्चे की जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेटिकल कहानियां बना के आप अपने बच्चे को खोल सकते हैं. ट्राई टू यूज चाइल्ड लेवल लॉजिक and plug in properly. As I told earlier कि all the mobile cannot be charged with the same charger. In the same way आप बच्चे से बहुत देर तक उसको समझाते रहिए. बाद में पेरेंट्स कहते हैं मैम 1 घंटे समझाया फिर भी वहीं के वहीं उसको कुछ समझ नहीं आया, वो फिर भी उतनी शैतानी कर रहा है, वही बिहेवियर कर रहा है. तो आपने उसको समझाया लेकिन आपने 1 घंटे मोबाइल चार्जिंग पे तो लगाया, लेकिन आपने देखा कि क्या कनेक्टिविटी हुई.
पता चला कनेक्टिविटी तो हुई नहीं, मोबाइल तो चार्ज होना शुरू ही नहीं हुआ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लग इन प्रॉपरली। आप बच्चे के साथ ऐसा रैपो स्टैब्लिश करिए कि आप जो बोलें तो वो उस चीज से पहले, सुनने से पहले कनेक्ट हो, वो आपको सुनना चाहे। सुनने से ज्यादा जरूरी है सुनने की चाह, वो आपको सुनना चाहे। दिस कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज नेवर फॉरगेट दैट योर चाइल्ड इज अ यूनिक एडिशन। कभी भी अपने बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि कहते हैं ना कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, एक तू जरा सा साथ दे तो और बात है। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि कभी भी अपने बच्चे को किसी से हम कंपेयर ना करें। एंड गिव रिस्पेक्ट टू योर चाइल्ड सेल्फ स्टीम। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को तो है ही बेवकूफ, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, इस देखो तुमने फिर से कर दिया, मैं तो पहले से कह रही थी कि तुम्हें तो अकल ही नहीं है। डोंट ट्राई टू टैग योर चाइल्ड बाय दीज कमेंट्स, और डोंट ट्राई टू हर्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ योर चाइल्ड। अगर बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट, एक बार सेल्फ स्टीम डाउन हो गई ना, तो आप उसको कितना भी पढ़ा लीजिए, यू वुड नेवर बी एबल टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस। अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम को हमेशा हमें आगे रखना है। सो नाउ आई वुड लाइक टू से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, our children is like LIC, लाइफ इंश्योरेंस। हमारे बच्चे हमारे लिए एक LIC पॉलिसी की तरह हैं। 20 साल की LIC पॉलिसी है। अगर हम 20 साल तक उनमें हर रोज अपना बेस्ट इन्वेस्ट करेंगे, हर प्रीमियम ठीक से भरेंगे, क्योंकि मे भी आपके लिए पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए पूरी दुनिया आप ही है, वो हर चीज आपसे सीखता है। तो आवर चाइल्ड इज लाइक LIC पॉलिसी। अगर हम हर रोज अपने बच्चे में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे पॉजिटिवली, सोच समझ कर क्या इन्वेस्ट करना है, तो पूरी लाइफ हमें रिटर्न मिलेगा। दिस इज डैम श्योर। नेगेटिव इन्वेस्ट करेंगे तो नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, पॉजिटिव इन्वेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए अपने बच्चों से बात यूं करें कि बात बने, बातें ना बने। LIC पॉलिसी की हर प्रीमियम, हम दुनिया में अपने टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इधर की बात उधर की बात, उसने ऐसा बोल दिया उसने ऐसा बोल दिया, उसकी जगह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरा फोकस रखें अपनी LIC पॉलिसी पर, क्योंकि मुझे इसी से पूरी लाइफ रिटर्न मिलेगा। रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन, जब हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखेंगे। सो नाउ it is my last message to you. We perform the role of the ultimate with your ultimate for the ultimate result. Thanks for attending this workshop. And now if you have any query, you can write in the chat box. If you have any problem or if you want to ask something, you please write in the chat box and you can raise your hand. You can raise your hand. If you want to ask something, you can raise your hand. Yes, you can speak. Ma'am, Yes. I'm not a new listener for your thoughts, but and you know my basic problem also. That is there. And Achintya, I'm Yeah. talking about Achintya. या ओके। तो रमा जी, इस चीज में मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अचिंत्य का जो केस है उसमें उसके आगे ना इमोशनल कैथारसिस की प्रॉब्लम है अचिंत्य के साथ। इमोशनल जी। कैथारसिस वही कि जितना आप समझ भी पा रहे होंगे कि वॉट एवर ही हैज बीन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द सिचुएशन, जी। तो कहीं ना कहीं इमोशनल कैथारसिस है उसके साथ। तो उसकी इमोशनल कैथारसिस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा खुद पे वर्क करें और उस बच्चे पे थोड़ा सा ना उसके लिए थॉटफुल टाइम जरूर निकालें, क्योंकि अचिंत्य इज वेरी एनर्जेटिक एंड जीनियस चाइल्ड। लेकिन उसकी वो जो जितने भी जीनियस है ना, उसका जितना भी जीनियस है, कहते हैं ना, अगर आग को सही, एक आग से हम दिया भी जला सकते हैं और चिंगारी लगा के आग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अचिंत्य के थॉट्स को थोड़ा सा ना उसको काम करना है, थोड़ा मेडिटेशन, हीलिंग, और उसके सामने थोड़ा एक उसको एक हैप्पी एनवायरनमेंट देना है। उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम भी है कि एम आई ए अनवांटेड चाइल्ड और नॉट। डू यू एग्री विद दिस?
कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड तो नहीं हूँ। तो यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसी सिचुएशन आने ही ना दें कि हमारा बच्चा अपने आप को एक लॉस्ट चाइल्ड, एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड फील करे। तो एज अ मदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चे को हम ये महसूस कराएं कि आई एम ऑलवेज विद यू, एंड फॉर एनी फर्दर कन्वर्सेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। नाउ नेक्स्ट। मैम, यस can I मैम। speak? Can I speak now? यस, यस मैम। Ma'am, my daughter is 2 year old. या Actually, मैम वो क्या करती है ना, लाइक मतलब इतनी वो हो गई, मतलब जो चीज चाहिए ना उसको तो लाइक उसको चाहिए, नहीं तो वो आधा आधा एक एक घंटा मतलब वो रोते रहती है। मतलब कुछ भी चीज है ना, लाइक सॉरी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो जैसे अभी कुछ भी चीज चाहिए, लाइक अभी सपोज आटा है, जैसे हर मॉर्निंग में उसका हो गया लाइक आटा है तो चाहिए, तो पूरा मतलब पूरा चाहिए, और वो मतलब नहीं दिया ना तो एक एक घंटा वो रोते रहेगी। मतलब सपोज उसके पापा चले गए बाहर तो वो मतलब स्टॉप ही नहीं होती है, वो रोते रहेगी, कंटिन्यूएशन में वो रोते ही रहती है मतलब। हाँ, तो हमको यहाँ क्या करना है, हमको यहाँ दो बातों पे ध्यान देना है। एक तो अगर वो इस तरीके का एक कंपल्सिव हो गया कि मेरे को ये जिद पूरी करनी ही है, तो हमें पहली चीज तो थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि थोड़ी बहुत देर अगर रो रही है दैन इट्स ओके, ध्यान नहीं देना, ट्राई टू अवॉइड हर। लेकिन अगर हमें लग रहा है ज्यादा रो रही है तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि वी शुड ट्राई टू डाइवर्ट हर माइंड। हमें उसके माइंड को स्टिमुलस वेरिएशंस, नॉट ओनली वर्बली, बाय यूजिंग स्टिमुलस वेरिएशन, उसको अलग अलग स्टिमुलस वेरिएशन देके वी शुड ट्राई टू डाइवर्ट हर माइंड। और लेटर ऑन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको बिठाकर समझाएं कि बेटा हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसके माइंड को डाइवर्ट करें और थोड़ा सा खुद को भी इमोशनली स्ट्रांग बनाएं कि अगर वो थोड़ा बहुत होती है दैन इट्स ओके, उसको ये फील करा दें कि मुझे इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैम जैसे लाइक जैसे एक बार मैं उसको बहुत डाइवर्ट भी करती हूँ ना, बट वो कभी कभी ऐसे इतनी स्टर्बन हो जाती है कि वो स्टॉप होती ही नहीं है, मतलब एकदम भी, हाँ, मतलब वो मानती ही नहीं। हाँ, क्योंकि हमने ना, आपने क्या बच्चे को कहीं अभी प्ले स्कूल में डाला है? हाँ, मैंने अभी जस्ट प्ले स्कूल में डाला, बट वो इतनी जिद्दी है, वो रोज एक मतलब 1.5 महीना हो गया, स्टिल शी इज क्राइंग बिकॉज आई वांट मम्मा, मतलब शी इज सो अटैच्ड टू मी ना, शी वांट मम्मा, वो स्कूल जाना चाहती बट शी वांट टू कम मम्मा, मतलब मम्मा भी साथ में चले। क्या वो स्कूल की कोई चीज घर लेकर आती है? प्ले स्कूल में बहुत सारे टॉयज वगैरह रखे रहते हैं, कुछ लेकर आती है? वो लेके नहीं आती, बट जैसे कुछ रहा, जैसे कुछ वो देते हैं ना, जैसे बना के आइसक्रीम जैसे पेपर में बना के देते हैं, तो स्कूल की टीचर भी बोल रही थी बहुत जिद्दी है, मतलब वो जैसे एक रूम में है तो वही हाँ, रूम तो से बाहर नहीं आना चाहती। हाँ, वो स्कूल में इसीलिए ज्यादा जिद नहीं करती है मैम का मोबाइल लेने की या टॉयज लेने की, क्योंकि उसको पता है कि मैम विल नॉट गिव मी। लेकिन वो मम्मी के लिए ही जिद करती है क्योंकि उसको पता है कि मम्मी मेरे इमोशंस से मान जाएंगी एंड शी विल गिव मी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। धीरे धीरे उसके माइंड में जो एनकोडिंग हो चुकी है कि मम्मी को मेरा रोना एक्सेप्ट नहीं है, इस चीज को आपको दिमाग से उसके क्लीन करना है थोड़ा सा। ओके For any further query, you can contact us later. Next. ओके मैम, थैंक यू। Okay. Yes, ma'am. Yes. Now, if you want any other query, you can ask me. Yes, ma'am. Can I speak, ma'am? Yes, yes, please. मैम जैसे अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब जैसे माई डॉटर इज इन नाउ 6, यू नो दैट। तो मैम हम लोग इतना जैसे हम घर का भी इतना काम होता है, मतलब क्योंकि हम जैसे आम हाउस वाइफ, तो घर सारा दिन काम ही नहीं निपटता, सब लोगों का कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए रहता ही है, और हम उनकी पढ़ाई का भी देख रहे हैं, घर का भी देख रहे हैं, और जैसे अभी आपने बताया इनका इमोशनली मोटिवेट करना, कोई एक्टिविटी आई है, कुछ आया, उनको समझाना करना, मतलब अपने लिए हमारे लिए जरा टाइम नहीं मिलता। तो मैम कई बार हमें लगता है कि हम ना इन्हीं से अगर थोड़ी सी हेल्प मांगते हैं करते, तो बच्चे ऐसे इरिटेट हो जाते हैं कि जैसे इनको तो लगता है इनका काम बहुत सुपीरियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैम मतलब हमारी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वहां पे हमें समझ नहीं आता, हमारी प्रायोरिटी बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम किस तरीके से हम करें, इमोशनली क्लैशिंग होती है फिर वहां पर। यहाँ हमें थोड़ा सा ना अपना होमवर्क करना होगा। यहाँ हमें थोड़ा सा होमवर्क करना होगा कि हमको अपना टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, इन सब चीजों पे वर्क करना होगा। हमें अपने बच्चों में मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करने होंगे थोड़े से,
और उनकी अगर वो 1% भी कुछ अच्छा करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर गलत करने पे पनिशमेंट देना जितना खराब है, उतना ही अच्छा काम करने पर अगर उनको रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव हम बूस्टअप करें तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा साधन है। इस तरह के बच्चों को सिर्फ आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा ही आप ठीक कर सकते हैं। और थोड़ा सा होमवर्क करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर काम करना होगा कि किस तरीके से मैं वर्किंग आवर्स अपने किस तरीके से मैनेज करूं, कि उसी काम को पूरे दिन स्ट्रेच करूं या उसी काम को किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करूं जिससे कि मुझे बच्चों के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल पाए। There is a question that in many cases, when we provide solution to our kid, our wives differ, our views differ. My view is always practical, and my view approach is theoretical. How we should manage this? Yeah. अगर देखिए सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एज अ हस्बैंड वाइफ हम दोनों के व्यूज डिफर हो रहे हैं तो बच्चे उसका फायदा ही उठाते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, बच्चों को कुछ समझाने से, बच्चों ने मांगा कि मुझे मान लो अभी आइसक्रीम चाहिए, हस्बैंड ने कहा दिला दो, वाइफ ने कहा मत दिलाओ टीथ खराब हो जाएंगे। आप बच्चे को बोला कि तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, 2 मिनट्स रुको, हम दोनों डिसाइड करते हैं कि तुमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पहले आप अलग कमरे में जाएं, आपस में दोनों डिस्कस करें कि उससे नुकसान ज्यादा है या कोई इतना मेजर नुकसान नहीं है, लेकिन आप दोनों की ओपिनियन एक ही होनी चाहिए। यू शुड बी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। तो आपको बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा लीनियंट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों के सामने कभी भी आपके व्यूज डिफर नहीं होने चाहिए। नाउ प्रीति you can ask. Ma'am, first of all, I just want to say thank you for the wonderful session. And if you remember, 2017 में मैं आपके क्लिनिक पर आई थी अपने बेटे को लेके, युग चौधरी. He was in 4th class that time. Now he is in 7th. So actually, ma'am, the question is saying he is very stubborn. 1 second, ma'am. 1 second. Yes, ma'am. So now the thing is that, ma'am, वो थोड़ा ना मतलब कैसे बोलूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचता है। आप समझ रहे हैं ना, यानी कि उसको पता है कि मम्मी थोड़ा पुश करेंगी, मैं बोलूंगी कि अपने होमवर्क कर ले, देन कि अपना वर्कशीट्स चेक कर लो। अब कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं हर जगह। इज इन 7th, तो ही शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, वो मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब आई डोंट नो कि ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ उसको बिल्कुल मतलब छोड़ दूं कि अपने आप करेगा, चाहे मार्क्स कैसे भी आए, चाहे कुछ भी हो, ग्रेड कैसे भी रहे। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लैक कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ाने लग जाती हूँ। अब मुझे कई बार बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं अपने हिसाब से सही कर रही हूँ या क्या पता मेरा ही वे ऑफ मतलब टीचिंग मान लो या वे ऑफ पेरेंटिंग में कुछ गड़बड़ चल रही है। दिस इज द मेन क्वेश्चन। हाँ, हमें ना यहाँ पे क्या करना है कि जब तक हम खुद ही एक्सपेरिमेंटल स्टेज में रहेंगे तो हम कभी भी ना एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। हमको यहाँ खुद को ना एक बिल्कुल सेन और प्लेसिड वे में रखना है। हमको खुद ही पहले समझना है कि सबसे पहली चीज तो ये जरूरी है कि हमारे बच्चे ना पेड़ की तरह, पतंग की तरह ऊपर आगे ना बढ़े। पतंग की तरह, जैसे हम कहते हैं कि आजकल ना सभी तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, सभी तो चैटिंग में लगे रहते हैं, सभी तो सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं। ये जब बच्चे पतंग की तरह आगे बढ़ते हैं ना, तो पतंग कहाँ गिरी, कहाँ कटी, कुछ पता नहीं चलता। हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों को ट्री की तरह बढ़ाना है, वृक्ष की तरह, कि जितना आप ऊपर बढ़ो उतने ग्राउंड रूटेड रहो, तभी आप बड़ी से बड़े थपेड़ों को, परेशानियों को, आंधी तूफानों को सहन कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों में वैल्यू इनकलकेशन करें। और मैं ये मानती हूँ कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों में वैल्यू इनकलकेशन करना। अगर हमें जिस तरह से मोबाइल में चार्जिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस सही चार्जर होना चाहिए, इसी तरीके से बच्चों में वैल्यू इनकलकेशन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ हम सबसे पहले अपने काम का एक शेड्यूल बना लें। हम अपने बच्चों को चाहे दिन में 10-10 मिनट 3 या 4 बार दें, लेकिन उसमें हमारी स्क्रिप्टेड हमारी कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें बच्चों को बताना है, अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बता के कि बचपन में मैं ऐसे करती थी, मेरी फ्रेंड एक ऐसी थी और वो सारा टाइम वेस्ट करती रहती थी, या मैं वेस्ट करती रहती थी। एक दिन फिर मैंने उसको देखा, मुझे लगा कि नहीं, वो तो बहुत, जैसे एक ट्री है, ट्री पे बहुत आगे बढ़ गई है और मैं तो किसी एक ब्रांच पे डाइवर्ट होकर नीचे गिर गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं
नेक्स्ट आगे बढ़ूंगी और मैं किसी भी ब्रांच पर डाइवर्ट नहीं होंगी और मैं सीधा आगे ऊपर जाकर जो एप्पल रखा हुआ है ट्री के ऊपर सक्सेस का, उसको ग्रैब कर लूंगी। तो हमें अपने बच्चों को इस तरह की कन्वर्सेशन में हाइपोथेटिकल स्टोरीज के थ्रू हम बच्चों में मॉरल वैल्यू यहाँ पर आपकी ना डायरेक्ट पेरेंटिंग काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। डायरेक्ट पेरेंटिंग होगी ना तो बच्चे सोचेंगे कि बस चुप हो जाओ और मुझे भागना है। हाँ मैम, यहाँ ये पर होता है हमारी उनको, हाँ यहाँ उनको पर लगता है हमारी कि हाँ हम्म, भाग, बस अब आप चुप हो जाओ, हो गया बस आपका, अब आप चुप हो जाओ। यहाँ पर हमको इनडायरेक्ट पेरेंटिंग करनी है कि बच्चों के सामने रोल मॉडल की वो आपको मैग्नेट की तरह आपके पास खींचे आए। आप उनसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पर बातें करें अपने ऊपर स्टोरी बना के, और ऐसे बाय यूजिंग चाइल्ड लेवल लॉजिक के उनको लगे कि अरे मम्मी भी बिल्कुल मेरे जैसी थी, है ना। जैसे कई बार इरेलीवेंट टॉपिक पर कि अच्छा चलो पता कितने कौन कौन से मार्वल के कार्टून है ये बताओ, अच्छा मार्वल में तुम्हें कौन कौन से कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद है। बच्चों को लगे कि हाँ मम्मी इज लाइक मी, वो खुद को आपसे कनेक्ट कर पाए। So, okay, so if you have any other doubt, you can join again or you can contact me later on. Yeah. Any other doubt if any one of you have? No? Yes, Chanita ma'am, please. I would like to say one thing that I am honored that Chanita ma'am is here with us. She is from Sweden right now. Chanita ma'am, would you like to say something? I am honored with your presence. I am honored with your presence, ma'am. Good evening, ma'am. Hi. Can you let me see if I can switch on? Yes. Hello, ma'am. I am so happy that I could listen to you. It was so relevant. I'm also a new mom now. I have a very little baby, and I felt that I'm so happy. I just wanted to appreciate the content and the presentation, the structure, the delivery, and especially, the amazing idioms and जो हिंदी के मुहावरे होते हैं ना, अभी मैं international space में हूँ, तो for me to listen to all of that, it's so relatable, plugging and plugging. So it's wonderful. Do share the recording and share it with other family members. Just wanted to appreciate. Sure, ma'am. Your presence is an honor for me, ma'am. Thank you. Welcome. Yeah. So I hope, Aarti, do you want to say something? यस दी, बस मैं यही पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली जब से मतलब लॉकडाउन हुआ है तो बच्चे मतलब ना अपनी लर्निंग पे उतना ध्यान नहीं देते। मतलब वो कहते हैं जैसे इरिटेट हो जाते हैं, क्लास करी 2 बजे तक क्लास, तो कि मम्मा अब हम बोर हो गए हैं, उसके बाद ट्यूशन चले गए, तो मतलब लर्निंग के लिए टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता। और Actually, Aarti, one thing I would like to say, discipline is the foundation of everything. Discipline is very important in life. जिस तरह से हमारे बच्चे जब everything was normal at that time, उस समय पे थे, क्या हमने लॉकडाउन पीरियड में भी इन चीजों का ध्यान रखा डिसिप्लिन का, कि हमारे बच्चों के लिए क्या हमने एक स्केड्यूल बनाया, क्या हमने एक स्केड्यूल बनाया कि कितनी देर इनको मोबाइल पे रहना है, कितनी देर इनको ऑनलाइन क्लासेस से एक्स्ट्रा मोबाइल यूज नहीं करना है। जब हमने उनके लिए एक होमवर्क नहीं बनाया तो डेफिनेटली एक वैक्यूम आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारे होमवर्क में कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं एज अ होम मैनेजर कि मुझे बहुत सारे काम हैं, तो चलो बच्चे मोबाइल पे थोड़ी देर लग रहे हैं तो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पर दिस इज अगेन नेगोशिएटिव पेरेंटिंग। जब हम इस तरीके से सोच लेते हैं तो हम बच्चों का जो हमें बच्चों के साथ जो वर्क करना चाहिए हम वो नहीं करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें हम ये देखें कि कहीं ना कहीं से मेरी तरफ से कहाँ लैकिंग हुई, कि मैंने उनको कितनी देर मोबाइल पे खेलने के लिए अलाउ किया, या मैंने उनका रिटर्न वर्क के लिए ध्यान कितना दिया। और अगर लेट हो गया है तो इट इज टाइम टू टेक ए यू टर्न। नाउ यू कैन मेक अ स्केड्यूल, और उसमें हर चीज पर ध्यान देना है कि एक रूल फिक्स करना है कि कितनी देर हमको मोबाइल के साथ टाइम बिताना है, कितनी देर हमें बच्चों में वैल्यूज इनकलकेट करनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्बल डिस्कशन इज द की ऑफ एवरीथिंग। वर्बल डिस्कशन इज द की ऑफ एवरीथिंग। कि जब आप ये देखो कि अब मेरे बच्चे मेरे को सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो मेरे से ना हर समय बस बात करना चाहते हैं, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल।
So make a checklist कि जब मेरे बच्चे मेरे से मैं कहूँ कि अच्छा मैं फ्री हूँ, आ जाओ मेरे पास, तो वो मोबाइल वगैरह टीवी वीवी सब छोड़ के बस मेरे पास भागे चले आए, देन या आई एम अ सक्सेसफुल पेरेंट। तो अपने आप को इस लेवल तक लाकर आपको अपने ऊपर वर्क करना है। थैंक यू दी। Welcome. Yes, ma'am, you want to say something, Yashmeet? एक्चुअली मैम जैसे अभी आपने रूल्स की बात की, मैंने सभी रूल्स बनाए, सब कुछ मैंने तो मतलब काफी चीज की, आपको इतना मिनट्स देखना है, इतने बजे सोना है उठना है। बट कई बार क्या होता है कि ना, जैसे मेरी डॉटर प्रिशा, वो मेरे को कहती है, मैंने कहा आपको, मुझे नहीं पता, अगर आपके स्कूल खुल रहे होते तो भी तो आप 8 बजे 8:30 जैसे 8:40 से क्लासेस है, तभी तो अपना आके क्लास करती। बट वो इतना लेट उठती है, लेट उठने के बाद इतना लेजी रहती है कि उसकी फर्स्ट क्लास 90% मिस होती है। अब मैं उससे ये कहती हूँ कि फिर मैं उससे मैंने कहा फिर उसके बाद बेटा 1 बजे तक कॉन्टिन्यूस क्लास चलेंगी, आपको नहाने का टाइम नहीं मिलता। तो मम्मा और बच्चे भी तो 8:30 9 बजे उठते हैं, और बच्चे भी तो 1 1 2 2 बजे नहाते हैं। हमें अपने बच्चों को ये समझाना है बाहर जो भी हो रहा है हमको उस पर ध्यान नहीं देना। बाहर तो मम्मा ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान न देके पार्टीज कर रही हैं, किटी पार्टी कर रही हैं। क्या मैं आपको छोड़ के जाती हूँ? मैं नहीं जाती ना, मेरे लिए पूरी दुनिया आप हैं, तो आपके लिए पूरी दुनिया मैं होनी चाहिए। और अगर बच्चों के साथ इस सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है कि स्टॉप टॉकिंग देम, हम उनसे बात करना बंद कर दें और नॉन वर्बल पेरेंटिंग यहाँ करें। मैंने सारे तरीके अपना लिए, मैंने उसको काफी इग्नोर भी करा और काफी मैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, बिना बात करे बिना 2-3 घंटे तो निप जाते हैं, बट पूरा दिन नहीं निप पाता। क्योंकि वो पता है क्या करती है, जब मैं उससे बात करना छोड़ देती हूँ, किसी काम में हेल्प लेना छोड़ देती हूँ, तो वो और फ्री हो जाती है कि अच्छा है, वो उसको मतलब थोड़ी देर तो उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो चाहती है फिर वो करती है, फिर मैं अंदर ही अंदर और फ्रस्ट्रेट हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमको ना एक काम करना है कि यहाँ पर हमको उसकी थोड़ी सी ना, यहाँ पर उसकी मॉरल बूस्टिंग करनी है, मॉरल वैल्यूज को इंकलकेट करना है, उसकी पहले तारीफ करके उससे कनेक्ट होना है, उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करके उससे कनेक्ट होना है, और फिर उसको जितना जल्दी जल्दी आप उसको रिइंफोर्स करेंगी, उसकी तारीफें करेंगी, उतना ज्यादा आप उससे, कहते हैं ना, प्यार से काम सारे निकलवाए जा सकते हैं। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी लेटर ऑन इफ यू वांट मोर क्वेरीज। ओके। So now I think now we should stop this conversation, and now if any one of you have any query, you can contact me, and now I'm sharing a link on the same group or even in the chat box. You all are requested to fill this feedback form. I'm sharing a message in the chat box. You all are requested to fill this form. This is the feedback form. You all are requested to please fill this form. Click on this form and please fill this form for the feedback. Okay. I hope you all like this conversation. Hope to see you soon. Okay. Bye bye. Thank you for attending this workshop.